Wow. Diwakar and Faiza. Thank you. धन्यवाद भाई. Inviting. Invitation, yeah. Yeah, this is a noun. Oh my god. Yes, because I am in the process of learning Hindi, I am just getting confused. Yeah. It's alright. What is your wildest fantasy? Do you think your partner is more romantic than you? क्या आपका partner आपसे ज़्यादा romantic है? Oh my god. Those kind of crying babies I really want to slap. Oh. So अभी शादी के कौन सा ईयर आया और उसके बाद ये आपने गदर का सीन कैसे मतलब? गदर का सीन. प्यार की कहानी की शुरुआत कैसे हुई? जब मेरा फाइजा से प्यार हुआ तो मेरा उसका रिलीजन देख के नहीं हुआ. मेरा उसको प्यार हुआ मेरे इमोशन से, मेरे जुड़ाव से, मेरे लगाव से. वहाँ पे गया, मैंने इसको देखा, इसने मुझे देखा. ये तो शौक हो गई क्योंकि उस टाइम हमारी वेशभूषा बहुत ज़्यादा अलग थी. फिर मैंने अपने सभी जो है सभी आदरणीयों का नाम लेके और सभी अपने देवता का नाम लेके उसको जो है सिंदूर लगा दिया. जो पर्शियन वेडिंग है वो कैसी होती है? मतलब इंडियन वेडिंग से क्या डिफरेंट है? के लिए लड़के भी देखना शुरू कर दिया था. कि विजिटिंग होनी शुरू हो गई थी. हाँ. All the reason was that because I love her. Yes, like this. So he said to me also that because you love him, I'm okay. उन्होंने एकदम से मेरे को देखा, आपस में बात करी और मैं थोड़ा सा आगे निकला, उन्होंने पीछे से मेरा कॉलर पकड़ लिया. माइंडसेट कर रखा था कि हमें किसी भी तरह ये शादी नहीं होने देनी. Okay, you don't know him, you know me. I am saying to you every information. फाइजा के फादर आगे ही जा रहे थे, मैंने उनका हाथ पकड़ लिया. मैं कहा बाबा बोलते हैं फादर को. तो वो पीछे मुड़ के आए. वहाँ पर फिर दूसरे मिलिट्री ये सोल्जर्स आ गए. लेकिन मैं डर गया था भाई, मेरे साथ तो कोई भी डर जाएगा, अनजान देश है. उन्होंने क्या करा, Wow. Diwakar and Faiza. Welcome to the show, guys. Thank you. बहुत Thank you धन्यवाद for भाई. Inventing the show. Invitation. Inviting. Invitation. Yeah. Yeah, it is a noun. Oh my god. Yes, because I am in the process of learning Hindi, I am just getting confused. Yeah. It's all right. Invitation. Have you learned a little bit of Hindi in this process? Yes, I am All right. expert in it. Oh, yes. I can see that. Yes. So Yeah, how would you very welcome much our audience with your expert Hindi language? Because I know a lot of Hindi, so I don't know from where I have to start. Okay. But Namaste दोस्तों and बहुत धन्यवाद to see us, to watch us, and for English. watching us. Okay, no difference. Even in Hindi there are a lot of English words. Right. Yeah, and मैं बहुत खुश हूँ for being here and with you, with Super Tax team. Yes. So Great job. Good job. Perfect. खेली खूब. Because in the last video, I saw that people writing that Faiza is very innocent, her smile is very pretty. You want to say something to all those people? actually, they always are very much kind toward me. Yeah. And they consider me as a cute girl always. That is so nice of them. Oh, That is so nice if you of want them. to thank them in Persian, how would you do that? I would say that سپاسگزارم بابت تمامی محبت ها و الطاف شما. Beautiful. Please translate for us. It means that سپاسگزارم means I am very much grateful. Wow. Wonderful. I am very much grateful for having your all kindness toward me. Beautiful. Yeah. Fantastic. So दिवाकर भाई इतनी प्यारी हिंदी से आप तो सिखा ही रहे हैं इस पूरे प्रोसेस में. इस प्यार की कहानी की शुरुआत कैसे हुई? ये कहानी जहाँ पर आप ईरान चले गए और एक जो हमारे देश में हिंदू मुस्लिम चलता रहता है, आपने उस लड़ाई को प्यार में बदल दिया. राघव भाई, सबसे पहले तो ओम नमो नारायण, आपने मुझे फाइजा को दोनों को इनवाइट किया है, बहुत धन्यवाद आपका.
देखिए मेरा बिल्कुल जैसे आपने कहा है कि प्यार कहानी है, प्यार की कहानी है, और मैं ज़्यादातर अपनी वीडियोस में लिखता हूँ कि हिंदू मुस्लिम लव स्टोरी, तो वो लव है उसमें। अब लोग उसको किसी भी नज़रिए से देख सकते हैं, बट मेरा नज़रिया है कि दो धर्मों का प्रेम है, ठीक है। तो मैंने इसमें वैसे मैंने धर्म वाली कोई चीज़ लाया नहीं, बट ये हो गई। मुझे पता नहीं था कि मतलब जब मेरा फायजा से प्यार हुआ तो मेरा उसका रिलीजन देख के नहीं हुआ, मेरा उसको प्यार हुआ मेरे इमोशन से, मेरे जुड़ाव से, मेरे लगाव से, कि हाँ वो मुझे कितना समझती है, मैं उसे कितना समझता हूँ। और शायद अगर फायजा मेरे दिमाग में शुरुआती दिनों से था कि मुझे शादी का मेरा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था मेरी लाइफ में। ऑलराइट, सो स्टार्ट करना है। पहली बार आप कब मिले? व्हेन डिड यू गाइस मीट फॉर द फर्स्ट टाइम? For the first time, actually, we started out talking through Instagram. Instagram, woohoo! Yeah, we started exactly there, and the first person who stopped messaging, you guess was whom? It was Yeah. वो शख्स मैं हूँ। so पहला मैसेज क्या था भाई मैंने मैसेज किया था कि भाई कि तुम, इसके जो इंस्टाग्राम की प्रोफाइल थी उस पर कोई पिक्चर नहीं थी। ओके, ठीक है, ये अगर आप कहोगे कि हाँ मैंने चेहरा देख के करा, नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। इसी को कहते हैं कि भाई जहाँ होना होता है वहीं होता है, ये सबसे बड़ा प्रमाण है। तो जब मैंने उसको मैसेज किया तो मैंने उससे पूछा क्या आप ईरान से हैं या टर्की से हैं? अच्छा, क्योंकि मैं ईरान के बारे में जानना चाहता था, उत्सुक था मैं ईरान के बारे में जानने के लिए। ईरान मेरे दिल और दिमाग में बसा हुआ था। तो और ये कौन सी ईयर की बात? 2021 की, 21 लॉकडाउन के आसपास। हाँ उस वक्त, हाँ 2020 ना or बोले, 2021? 21 Really? बोल Okay. गई। अभी तो शुरुआत हुई है। वो 2020 or 2021? 2021 maybe, because Okay. they're saying so. Okay, we'll yeah. check your messages later. No problem. I swear to God that I wrote it down, but I don't know हाँ, why. diary maintain Yeah, I wrote it down in my diary. You're creating a journal? Hmm. Oh wow. Yes. Interesting. Very interesting. We'll talk about it. So 2021 आपने मैसेज किया Message कि किया। ईरान और टर्की के बारे में कुछ बता। हाँ मैंने उसको मैसेज किया कि आप ईरान से हो या टर्की से हो? तो उधर से मैसेज आया ईरान से हो, तो मैंने कहा ठीक है। फिर पूछने लगा, मैंने कहा ईरान में ये चीज़ कैसे, वो चीज़ कैसे। तो वो शुरुआत में बहुत हिचक रही थी बात करने में, और उसने कहा कि मैं ज़्यादा बात नहीं करती हूँ अनजान लोगों से, तो बाय। उसने बहुत बड़ा टेक्स्ट लिखा और कहा बाय। ओके, मैंने कहा बाय तो बाय, मैंने बाय भी नहीं लिखा। तो अच्छा मैंने नहीं लिखा कुछ भी, मैंने अपना फ़ोन साइड में रख दिया। मैंने थोड़ी देर बाद, 1 घंटे बाद आके देखा, फिर से इतना बड़ा रहा, तुम में इतना एटीट्यूड है, किसी ने बाय बोला है तो तुम बाय भी नहीं बोलोगे? Yes. You're angry It with is- this message? Yeah, you know, because it is it has to do with our culture. Yeah. Whenever a person wants to, even in the call we are like this, whenever we wanna hang over the call, we say that goodbye. We always we say this thing. It is a culture. Alright. And so I was in this culture, and maybe let me say that I was not that much flexible with this kind of. Actually, I couldn't understand the changes. I thought that maybe it is something that exists in some other countries. So I was like, is that why? Even he's living in, he lives in Asia. In Asia, even the people are like this. So why he didn't? Whenever like he wanted to end the conversation, why he does not saying goodbye? So for the first time, I got very much offended. And I said, what kind of behavior is this? When you wanna go, say to me that you wanna go by saying goodbye. Yeah. Don't make me wait. Don't make me wait for you. Yeah. Yeah. अच्छा. अच्छा, फिर क्या था, जब उसने बहुत बड़ा टेक्स्ट लिखा तो मैंने उसको समझाया कि जब हमने बात ही नहीं करनी, अगर मैं तुम्हारे लिए इतना स्ट्रेंजर हूँ तो बात ही मत करो, बात खत्म है। बट पता नहीं वो कैसे हुआ, बातचीत होनी शुरू हो गई, और आई थिंक विद इन अ डे आई गेट हर नंबर। within the day. विद इन It was during night. Yes, but it was it took around about. मतलब 12 घंटे भी नहीं हुए थे। तो बहुत जल्द, बहुत तेज हुआ आप तो इनसे काम में। हाँ, तो मैं पिकअप लाइंस भी कुछ मारी होंगी? नहीं Was he flirting on you? No, at all. But even let me say to you something. That time, I literally, if I give my number, I was thinking that I was very much happy because I was thinking that okay, I'm using my English. I always like this thing. Even when the tourists come to Iran, I always try to communicate with them. So even that time, I said to my parents that hey, I am talking to an Indian guy and I am trying to improve my English. Still, my father said, "Do you remember that you wanted to improve your English level?" That English learning made you went to India, made you go to India. Yes. Wow. Best max. इंग्लिश और इंस्टाग्राम दोनों ने मेरा जीवन Powerful. So फिर ये हुआ, उसके बाद उसके बाद फिर हाँ
शुरुआती बातें हुई ऐसी, फिर कुछ पर्सनल बातें हुई कि हाँ भाई आप सिंगल हो, इस तरीके से। ये कितने कोर्स में था? विद इन अ वीक? विद इन अ डे। विद इन द डे पे नंबर भी ले लिया और सिंगल रिलेशनशिप सब आ गया। बच्चों के नाम। He understood, yeah, he understood. But more for the beginning, like in the beginning, at the beginning of our conversation, he started talking about the culture Iran, traditions. and political issues. And after that, we went to WhatsApp and we talk about the thing that he understood. Okay, I am single. That time I thought that he is above 30, like 35. I was He's above thinking- 35. I thought that. You thought he's a little older. She thought I thought, and even I was not at all thinking about relationship at all. Even I don't know. It was after one day. It was after one that when he suggested, then I was like this that it is not possible. How is it possible? What did he say? Just in one day, he said that we should be in a relationship. He said what you said. क्या कह दिया आपने ऐसा? क्या? It was the suggestion of relationship, but what was it exactly? What was it? No, I didn't say that. Sunny. Like, oh, no. Come on. What say? We just talk about tradition and culture. We talk about okay. it, but after. After that, nothing. I asked her that you are single. She says single. Okay. So ये एक दिन बाद आपने पूछने एक लगे दिन कि मैंने लाइफ के कहा बारे कि में। ऐसे ऐसा क्यों है कि सिंगल क्यों हो अभी तक। तो उसने कहा कि हाँ मैं टीचिंग कर रही हूँ और इस तरीके का मेरा कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं है रिलेशनशिप में आने का। तो मैंने कहा ठीक है, ओके फाइन, लेट्स टॉक अबाउट इट। Yes. तो वहाँ पे बातचीत हुई, बट जब उसने बोला मैं सिंगल नहीं हूँ, तो एज अ लड़का मेरा धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है कि मैं उसे सिंगल ना रहने दूँ। ओके। तो फिर बातें होने शुरू हुई और बातों में फिर कुछ इमोशनल बातें आ गई थी। वो फेस मेरा थोड़ा डिप्रेशन वाला था। ये कितनी देर बाद था? ये मतलब मैं डिप्रेशन में था कुछ टाइम, उस साल की बात है, ये कोविड के बात है, मेरे फादर डिमाइस हुए थे। ठीक है, तो मैं घर से बाहर नहीं निकलता था, मैं 24 घंटे फ़ोन में रहता था। तो उस वक्त मेरी फायजा से बात हुई थी और मेरा बस ये था कि मैं इंडिया से बाहर जाना चाहता हूँ एज अ व्लॉगिंग करने के लिए, क्योंकि मैं घर पे बहुत ही घुटन सी महसूस होती है ना डिप्रेशन के टाइम में, वो भी ऐसा हो जाए आपके साथ तो बहुत ही ज़्यादा वो फेस ही बहुत। पिता के देहांत के बाद तो किसी को बुरा हाँ वो सो फायजा से उससे पहले से बात चल रही थी? नहीं उनके बाद। अच्छा, देहांत के बाद बात शुरू हुई। तो यू आर आल्सो काइंड ऑफ एक्सप्लोरिंग थिंग्स कि यार दोस्त तो बनाए बाहर चलते हैं, अब यहाँ नहीं रहना ऐसा था मेरा कि मुझे यहाँ रहना ही नहीं है, मुझे बाहर जाना है कहीं। तो उसी संदर्भ में मेरी बात हुई और फिर वो जो जब घर परिवार की इससे बातें हुई मेरी, तब इसी बात में मैंने इसको ये बात बताई थी कि ऐसा हुआ है और मैंने इसको बताई और शी स्टार्ट क्राइंग। तो मैंने कहा यार ये लड़की ये वीडियो कॉल हो रही थी? नहीं, हाँ ऑन कॉल बात हो रही थी। अच्छा, ऑन कॉल हो रही थी तो ये रोने लगी। मैंने कहा ये लड़की, इसका हार्ट कितना सॉफ्ट है, मतलब ये बस बताने पे, क्योंकि मैं जब बता रहा था तो वो चीजें बता रहा था कि क्या क्या घटित हुआ था। तो शी स्टार्ट क्राइंग। जो इमोशन इसके अंदर वो जो था, एक मेरे को उससे बड़ा लगाव है अभी तक है। शी इज़ वेरी इमोशनल, वेरी इनोसेंट, और मतलब उसका हार्ट बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है अगर वो किसी को देखती है दुख तकलीफ में। तो मुझे इस चीज़ से आज तक उसके बहुत लगाव है और यही पहली चीज़ थी जिससे मुझे लगाव हुआ। और मैं पूरा श्रेय देता हूँ उसको कि मैं उस डिप्रेशन से जो निकला हूँ ना, वो उसकी वजह से निकला हूँ। और चलो ठीक है, हाँ कि हाँ मेरे अंदर ये था, वो तो मैंने फ़नी वे में बोल दिया कि मुझे नहीं रहने देना, लेकिन मेरा ये था कि हाँ चलो बात कर रहे हैं, अब करते रहेंगे। तो किसी के बाहर वाले से बात हो रही है, अपने लोगों से बात होती है उस समय, तो सभी लोग ये कहते हैं अरे यार ऐसा होता है वैसा, वो सब घूम फिर के। तो मैं बाहर से बात करता तो मेरा नजरिया अलग होता है। राइट। सो व्हाट डिड यू डू टू मेक हिम हैप्पी व्हेन ही वाज इन दैट फेज? What do you do? First, we were talking about 61 because I couldn't understand the things. About my father. First of all, let me say this name because I remember this. That I don't know. After 2 days, 3 days, there were some kind of suggestion to be like partners. Okay. Yeah, right. So because it was very much something that I haven't thought about it. Even I was a girl that I haven't thought about going to another country and live there. I didn't think about it because I was very much dependent on my country. I am a person who can, like, my heart gets connected to everything in a very much deep way. The things that I like I like the
smell of my country. I like the nature of my country. I like the bazaars of my country. I am like this. To those things, I get connected. That most of the people, maybe they put them aside, and it is not something that, yeah, why should we pay attention to that thing? So that time I said that, I said different things. Yeah, it is. I said all the problems that I have. I said all the challenges and all the barriers in my mind, and so we said to each other, okay, let's just talk normally. After that, if we see that, okay, we have a lot in common and we really enjoy with being each other, we can be like a pure calm for each other. Okay, after that we think about we say. So initially this was the thought Yeah. कि हम दोस्त बनते हैं और दोस्त बनने के बाद if we think अगर लग रहा है कि यार हमारा एक compatibility बन रही है तो हम सोचते हैं, but अभी एक दोस्त की तरह हम at least बात करना शुरू करते हैं. ये thought है. Initially only just be friends, Yes, and later yes. on if something Let's- develops, yeah. you'll maybe Yes. think about a relationship. Most like just for the context, I really want you to introduce yourself because I think it's very important for users to know who you are, where were you, and what were you doing back in Iran. Okay. Yeah. Should I sit there or you? Anywhere. It's Okay. your studio. Okay. Yeah. Thank you. I am Faize. My first name is Faize. My last name is Avandi. But I myself know my real name as Mona because it is a name that my father chose for me even before I got born. Even the time that my father was just a soldier, he chose this name. He was saying that, in his dream, said, I have a girl, I have a daughter, and her name is Mona, and she goes to the school by the boat. It was this kind of dream that I had that time. And he always wanted to have a daughter. So that is why he's very much dependent on me, like emotionally. Emotionally. And I am in Iran, actually. In Iran, I used to be a governmental teacher for the elementary school students. And Your teacher. And what were your hobbies? my hobbies, I am the person, like, I try to enjoy everything. This thing that like for me, if I see the rain, I can connect. I can feeling. That's beautiful. I can feel connection to that rain. It really pets my inside. Like I like it because after rain, life come off. Huh? Ah. If India is this Interesting. much green, it is because of rain. yeah, Rain is everything. And so I love rain a lot. But I like watching movies. I like listening to music. And he knows me that much. If something is in my in Iranian movies, I like the drama ones. Okay. So if I like something, I literally get drowned in it. And You're a binge watcher. yes, I remember that we were watching Janavar. Yes, animal movie. Oh, you watched the Animal? Yes. Okay. And it was about to get ended, and he was saying to me that, like, I was very much angry that time, like. And he was saying to me that, why you are behaving like this? As if I did it. As if I was super angry. As if I was one of the character in the movie. That why this is that? That's much I get drawn into the things that if I like something, if I feel that kind of connection, if it looks very much attractive for me, Right. I get drawn in it. Yeah. Even I enjoy reading some books. Okay. Interesting. Yeah. So you like rain, you like movies. What do you like about Diwakar? The first thing that made me convinced, and let me say, the first thing and everything that made me convinced to be in his life was that his nature is completely pure. Get it. So basically emotions की वजह से, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान थे, आपने उनका दिल चुरा लिया. राइट. सो दिवाकर भाई, अब ये कॉन्वर्सेशन को हम यहाँ तक समझ आ गया कि चैट हुआ, आप डिप्रेशन से बाहर आए इनकी वजह से, इमोशनली इन्होंने आपको समझा, सपोर्ट दिया. अब आगे चलते हुए ये बात रिलेशनशिप से बढ़कर शादी की आ जाती है कि हाँ हम एक दूसरे को देख रहे, जैसे उन्होंने बताया दैट वो आपसे
कनेक्ट कर रही हैं, आप अच्छे इंसान हैं। सो अब ये शादी का कौन सा ईयर आया और उसके बाद ये आपने गदर का सीन कैसे मचाया? गदर का भाई राघव भाई ऐसा हुआ जब हम लोग एक बहुत ज़्यादा इमोशनल रिलेशनशिप में आ गए थे और मैंने इसको वादा कर दिया था कि हाँ मैं आऊँगा ईरान। उस टाइम एक न्यूज़ एजेंसी में एज अ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव जॉब कर रहा था और सब ठीक था और मेरा दिमाग में था और मैंने कहा था मैं तुझसे कभी झूठ नहीं बोलूँगा, कोई ऐसा धोखे वाली बात नहीं है और आऊँगा ज़रूर ईरान मिलने। अब मिलने, हाँ मिलने भी और शादी करने के अच्छा, ये शादी की बात शुरू कैसे हुई? ये मतलब कंफर्म था? ऐसा होता है ईरानियन गर्ल्स की मैं बात बता देता हूँ, जितना मैं समझा हूँ, जितना मैं ईरान में रहा हूँ और इसकी फ्रेंड से भी और दूसरे रिलेटिव से भी, जब ईरानियन लड़की किसी के साथ रिलेशनशिप में आती है ना तो वो कैजुअल नहीं होता है, वो सीरियस ही होता है, वो मैरिज तक का ही होता है। अगर आपकी इंटेंशन है मैरिज की तभी वो आपके साथ रिलेशनशिप में आएगी। ओके। अगर नहीं है, आप सोच रहे हो जैसे एज इंडिया में होता है, नॉर्मल होता है, बहुत सारी चीजें इंडिया में होती है, वन नाइट स्टैंड हो गया, हुकअप्स वगैरह हो गया, तो यहाँ नहीं है कि ऐसा है। हाँ वहाँ ये चीज नहीं है। तो ये आपको पता था कि ये बात सीरियस हो चुकी है? हाँ ये बात हो चुकी है। और कितना समय लगा इस चीज को? ये शुरुआती में जब रिलेशनशिप की हमारी बात हो रही थी कि हाँ रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचती हो, तो इसका पहले ही था कि मैं रिलेशनशिप में आऊंगी तो सीरियस रिलेशनशिप में, मतलब कि हाँ शादी ही होनी चाहिए। ओके। तो वो माइंड पहले से मेक कर लिया था कि हाँ यार अब ठीक है, चलो अब यही है। तो मैंने इसको बोला था मैं आऊँगा ईरान और मैं तेरे पेरेंट्स से बात करूँगा। कितने महीने में ये बात शुरू हुई? ये शुरुआती 2 महीने में हो गया था। अच्छा, 2 महीने में झक्का मार दिया आपने? हाँ। अच्छा। हाँ मुझे चट मंगनी पटव्या। हाँ ये चीज़ हो गई थी, लेकिन वो 2 महीने का जो पीरियड था वो 2 साल तक चला। कहने का मतलब ये है कि 2 महीने में वादे और पूरा मतलब साथ निभाने के बाद और सब कुछ शादी वादी का हमने डिसाइड किया था, फैमिलीज ने नहीं। और मेरे जाने में भी बहुत समय था। ओके। ठीक है, मैंने उसको बोला था कि मैं 2022 में आऊँगा, बट मैं जानता था मैं नहीं आऊँगा। तो मैंने कहा था तो वेट करना, अभी किसी को मत बताना। बट उसने पता नहीं क्या सोच के अपने पेरेंट्स को शायद 6 महीने बाद ही बता दिया था कि मैं रिलेशनशिप में हूँ। हाँ, और मैं शादी करना चाहती हूँ। मैं शादी करना चाहती हूँ और लड़का इंडियन है, रिलीजन भी दूसरा है। अब वो तो बिल्कुल ही मतलब घूम गए। ऑब्वियस सी बात है यार, अगर मैं अपने आप को लेके सोचूं कि मैं फादर हूँ और मेरा बच्चा बोले तो मेरा भी एकदम से मैंने कहा क्या बोल रहा है भाई। तो जाहिर सी बात है उसके साथ बहुत सारी चीज़ें घटित हुई हैं वहाँ पे। पेरेंट्स अगेंस्ट में भी गए हैं, लोगों ने इसको ये भी बोला है, फ्रेंड्स ने भी बोला है कि नहीं वो तुम्हारा बेवकूफ़ बना रहा है, वो नहीं आएगा, वो कैसे आ जाएगा, उसकी फाइनेंशियल जो स्टेट है वो ठीक नहीं है, देखो वो तो ऐसी जॉब करता है और ये है, उसकी तो गाड़ी भी ऐसी नहीं है और ये तो मतलब उसको पूरी तरीके से डिमोटिवेट करा। बट अब जो चीज़ क्रिएट हो चुकी है, एक ऑरा इमोशंस का बन चुका है, उसे कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। तो मैंने उसको बोला था मैं आऊँगा, तू मेरे पे विश्वास रख, और लेकिन सही समय पे आऊँगा। और मैं जो मेहनत कर रहा हूँ चीज़ों के लिए वो मैं इसीलिए कर रहा हूँ ताकि मैं वहाँ आ सकूँ। और जब मैं ईरान गया, मैं आपको वो बात भी बताता हूँ। कौन सा ईयर? 2023 लास्ट ईयर। ओके, लास्ट ईयर 23 में आप चले गए। हाँ मैं और ये 2 साल लग गए जाने में 2 साल लग गए। और तब तक बातें हो रही थी हेलो हाय कि मैं आऊँगा ये हो रहा था। जिसकी मदर भी बोल रही थी कि वो नहीं आएगा, इसके फादर भी कह रहे थे कि नहीं आएगा। इवन वो उसके लिए इसके लिए लड़के भी देखना शुरू कर दिया था, लड़कों के विजिटिंग होनी शुरू हो गई थी। प्रेशर बिल्डअप हो रहा था। हाँ, तो वो मेरे से कहती थी कि आज मुझे स्वीटर बोलते हैं वहाँ पे ना। स्वीटर मतलब लड़का देखने आता है, स्वीटर्स बोलते हैं। स्वीटर राइट? स्वीटर in English we say sweater, but in Persian we say khastekar. खास्तेगार जो है, Persian is a nice language. खास्तेगार। अमिताभ बच्चन है खास्तेगार, काइंड ऑफ एंटीक लैंग्वेज। जैसे हमारे यहाँ वेट मशीन को क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, बट उनके यहाँ क्या बोलते हैं वेट मशीन को, तराजू। तो वो एंटीक। इंडिया में काफी जो हमारा जो इवन लैंग्वेज है उसमें काफी जो मेज है, काफी वर्ड्स हैं जो पर्शियन ही है, जो हम नॉर्मल यूज करते हैं। इंडिया में फारसी लिटरेचर का बहुत फारसी, राइट। सो आगे क्या हुआ फिर? तो फिर इसने अपने पेरेंट्स को बता दिया, फिर वो प्रेशर बना रहे हैं और आपने अपना सारा अरेंजमेंट कर लिया ईरान जाने का। मैं यहाँ पे लगा हुआ हूँ अपना। मैंने फिर क्या करा, मुझे पता था यार उस जॉब के साथ, तो आप भी जानते हो कि अगर आप 20-25 हज़ार कमा रहे हो तो कहाँ आप सोच रहे हो कि आप ईरान जाके शादी कर लोगे। ठीक है, ट्रिप ही ऑर्गेनाइज करने में आपको इतना टाइम लग जाएगा। तो मैंने क्या करा, मैंने जॉब ही छोड़ दी। मैंने सेविंग उसकी साइड में रखी, उस सेविंग से जो है मैंने अपने कैमरा लैपटॉप वगैरह लिए और मैंने
वीडियोस करना शुरू कर दिया यूट्यूब पे। मैंने कहा बस यही एक तरीका है जिससे हाँ मैं जा पाऊंगा। हाँ, तो वो गुरुदेव के आशीर्वाद से बिल्कुल सही रहा। कितना ठीक खर्चा रहा। लगा ईरान में पहली बार जब पहली बार में मेरा 1 लाख रुपए लगा। आना जाना स्टे वगैरह सब हाँ कुछ? सब ओके, कुछ। ओके। इवन स्टे के लिए मैं बताता हूँ, मैं सिर्फ 200 मैं ट्रैवल ब्लॉगर्स की वीडियोस देख के गया था, तो किसी ने मेरे को बता दिया कि $250 पर्याप्त है। हाँ। तो वो भी मेरा कितने दिन का था, 45 दिन का वीजा था, 40 दिन रुका मैं वहाँ पे। तो मैं बस $250 लेके गया। किसी ट्रैवल ब्लॉगर ने वीडियो देखी, अरे भाई वहाँ तो बहुत सस्ता है यार ईरान, $4 में आप रुक जाओगे, खाना पीना फ्री है। मैंने कहा अरे बहुत बढ़िया यार एकदम। तो मैं लेके $250 गया था, बाकी टिकट्स वगैरह में बहुत खर्चा हुआ था। उसके बाद फिर मैंने वहाँ पे फिर इसी ने पे करा वहाँ पर, इसने पे करा। और फिर इवन इसने अपनी मदर से भी जो है वो लिए बोरो करे। तो इसकी उस टाइम भी ये परसेप्शन आ गया था। अब मेरे को पता थोड़ी था कि इतना ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। मैं पहली बार ही गया था ईरान, और बाहर की मेरा पहला इंटरनेशनल वो था टूर था। तो इसकी मदर ने कहा देखा हम तो कह रहे थे इसकी फाइनेंस स्टेट ठीक नहीं है, ये तो इसके लेके पैसे नहीं है, हमसे मांग रहा भी रहने के, तो तेरे को कैसे रखेगा? हाँ माँ बाप सवाल पूछेंगे। हाँ, तो वो सारी चीज़ें मेरे अगेंस्ट चली गई फिर। हाँ, लेकिन मैंने जैसे तैसे मैंने कहा देखो मैं ऐसा नहीं है कि मेरे पास नहीं है, मैं लेके नहीं आया, उसका रीज़न ये है, इसने भी बताया। बट उनका क्या था ना, उन्होंने एक माइंडसेट कर रखा था कि हमें किसी भी तरह ये शादी नहीं होने देनी, पेरेंट्स ने। और वजह क्या थी? फाइनेंस की? वजह फाइनेंस की थी, वजह दूरी की थी, रिलीजन की थी। ओके, चलो रिलीजन को भी वो दरकिनार कर देते, दूरी की बहुत बड़ी वजह थी। ठीक है। इंडिया बहुत बड़ी वजह थी, क्योंकि बहुत सारे ईरानियंस आपको पता है पुणे मुंबई में रहते हैं, पुणे में ज़्यादातर। तो इनके फादर के जो है कुछ फ्रेंड्स भी थे पुणे में, तो बातचीत करी, उन्होंने कहा यार इंडिया तो सही जगह नहीं है, ये है वो है, यहाँ तो हाइजीन की प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन बहुत है, एनवायरनमेंट ऐसा है, लोग ऐसे हैं। They were saying to me that you want to go to the country which is full of superstitions. I was saying that please don't get influenced by those kind of videos that you see on social media, because social media, I think most of the time is against India, huh? You don't so feel the like this? perspective or India is like, it is like this that dirty. yeah. Just imagine that for our wedding, we wanted to go. We were like my parents were supposed to buy some things for him as a tradition, and as a tradition, like they have to buy some things for the groom. So it was the shoes step time. Okay, it was the shoes step. I mean shoe time buying. So shoe buying time. So he said to us that in Iran we have like the good quality shoes for men are from leather. So he was saying that no, I don't want leather. I don't want. I'm pure vegetarian. Even I don't want any animal. Like I use any kind of animal skin in my things. So my father was saying that, but these things are very much like the quality is so good. It is so good in quality, and is the no. So every store that we went, they were saying that. We said that, when they came to notice that he is Indian, so they were saying, oh, okay, like it's really broke my heart. Most of them they behave in a very much insulting way, and they were saying, okay, he's Indian. Indians are cow worshipper because of that, like in a very much bad way. And my father was that time I remember that he was feeling so bad when he said to me that it's very much hard. It's fake thing, yeah. So आपको ईरान में basically racism face करने को मिला? No, exactly no. बहुत अच्छे लोग हैं ईरान के। अच्छे भी हैं, पर जिस तरह वो बता रही हैं कि एक्सपीरियंस बुरा कहाँ हुआ? बुरा मेरा एक बार हुआ था। हाँ। और जैसे आपने इसकी बात करी रेसिज्म की, ऐसा कुछ नहीं है, बस वो एक चीज़ को लेकर मजाक करते हैं, टॉन्ट करते हैं, वो है काउ वर्शिपिंग की। ओके। जिसका मैंने बहुत क्लैरिफिकेशन भी दिया और समझाने की कोशिश करी, बट मैंने कहा यार जो आपको मानना है मानो, जो हम मानते हैं हम तो पूजा करते हैं तो जिसकी जो है अच्छा तो आई थिंक जो मानना चाहता है वो माने, तुम्हारी सोच तुम्हारे साथ। बाकी उन लोगों में ऐसा कुछ भी नहीं रिलीजियस। बट वो आपको लगा? हाँ, वो लगा, वो मजाकी तौर पे करते हैं। ओके। हाँ, वो ऐसे नहीं करते कि हाँ भाई आप ऐसे करते हो तो हम आपसे घृणा करते हैं, नहीं, मजाकी तौर में। और दूसरा जो आप एक्सपीरियंस की बात कर रहे हो, एक बहुत ही ज्यादा ऐसा एक्सपीरियंस था जिससे मैं डर गया था। अच्छा। वो मैंने अपनी वीडियोस में आज तक नहीं बताया, इवन वो मैंने अपने घर पे अपनी मदर को भी नहीं बताया आज तक, और आज मैं बता रहा हूँ सुपर टॉक पे आपको। बताइए ना। ऐसा हुआ था, मैं जब ईरान में था लास्ट ईयर, तो मैं हॉस्टल में था फाइजा की कोलाई की। हम आज एक शो है
रिलीजियस शो है, हम वहाँ जाएंगे और चलना, और तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा, एक नया एक्सपीरियंस होगा, तुम वीडियो भी करना। मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं भाई अपना पूरा प्रिपरेशन करके, कैमरे की बैटरी चार्ज करके मैं तैयार हो गया। ये लोग आए लेने, हम लोग गए, हैमदान में था वो, हैमदान एयरपोर्ट के पास। ह्यूज क्राउड, ह्यूज, और सबने ब्लैक क्लोथ्स पहन रखे थे। आई थिंक इमाम हुसैन का कुछ था। Yeah, it was one of the biggest show that they were actually traveling different cities of Iran. It was the biggest show because that time it was the biggest show for Imam Hussein and his Yeah. religious show. इमाम हुसैन का एक शो था जो आप सब देखने गए। Okay, और आप वीडियो बनाने गए। हाँ, वहाँ पर एग्जीबिशन लग रही थी मिलिट्री की भी, तो वहाँ पर जितनी सिक्योरिटी थी सब इरानियन मिलिट्री थी। अब मैं पूरा अपना वही ब्लॉगिंग उसमें मतलब लेके कैमरा, और आप देख रहे हैं, और ये है और वो है, और रिलीजियस प्रोग्राम है ईरान में, मैं पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा क्राउड है। ये गोप्रो, और गोप्रो पे आगे स्क्रीन हो तो थोड़ा सा वो लगता है कि हाँ भाई ये क्या चीज़ है, अजीब सी क्या चीज़ है। मैं सिक्योरिटी में गया, उन्होंने मेरे तलाशी वलाशी ली। उस टाइम मैंने कैमरा नीचे कर लिया। उस एक सिक्योरिटी चेक के बाद दूसरा सिक्योरिटी चेक था, सोल्जर्स थे सब। उन्होंने जैसे ही, मुझे नहीं पता अगला भी सिक्योरिटी चेक है, तब उस टाइम मैंने कैमरा यूँ कर लिया। तो जैसे ही मैं अगले पे पहुंचा, उन्होंने एकदम से मेरे को देखा, आपस में बात करी, और मैं थोड़ा सा आगे निकला, उन्होंने पीछे से मेरा कॉलर पकड़ लिया। हाँ, तो वो मेरे से बात करने लगे कि क्या है, ये क्या है। तो आई सेड दिस इज़ कैमरा, आई एम इंडियन, आई एम अ फॉरेनर, लाइक। तो उन्हें इंग्लिश समझ में नहीं आई, ज़्यादातर इरानियंस को नहीं आती समझ में। तो उन्होंने बहुत मतलब ब्रूटली मेरा कैमरा पकड़ा, ऐसे छीन लिया मेरे से, और कॉलर पकड़ के मेरे को पीछे को खींचा, और कैमरे का बैग निकाल दिया। इत्तेफाक से फायजा के फादर आगे ही जा रहे थे, मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। मैं कहा बाबा 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 बोलते हैं फादर को। तो वो पीछे मुड़ के आए, उन्होंने भी उनको समझाने की कोशिश करी कि हाँ भाई ये हमारा दामाद है और इंडिया से आया है और ये ऐसी वीडियो करता है। तो अब उनको यकीन नहीं हुआ, उन्होंने मेरा कैमरा लेके एक ड्रॉ में रख दिया, कैमरे के ऊपर बैंडेड लगा दी और बैटरीज निकाल दी सारी। चिप निकाल के वो डिलीट करना चाह रहे थे, चिप निकल के एक तरफ गिर गई। फिर उन्होंने सबने चिप ढूंढी, मतलब पूरा कम से कम 10-20 सोल्जर लग गए चिप ढूंढने के लिए, जो SD कार्ड होता है। उन्होंने चिप निकाल के अपने पास रखी, सब कुछ जब्त कर लिया और मुझे भी जब्त ही कर लिया। डिटेन कर लिया ईरान में। डिटेन, हाँ डिटेन कह लो आप, पकड़ लिया मतलब। हाँ। तो फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने ऑफिसर्स को बुलाया। उसी वक्त था जब शिराज में एक आतंकवादी हमला हुआ था, वो किसी मस्जिद में। तो शायद इस वजह से वो ज़्यादा मतलब एग्रेसिव तरीके से बात कर रहे थे। उन्होंने मुझे एक जगह बैठा दिया, मैं कुछ बोल भी रहा था तो वो मुझे कह रहा था चुप चुप चुप, इस तरीके से। फायजा के फादर भी उधर ही बैठे थे, वो भी समझा रहे थे कि हाँ भाई मैं भी रिलीजियस हूँ और मैं भी ये हूँ, मैं गलत थोड़ी बोलूँगा, मेरा दामाद है और सब कुछ आया है, ये तरीके से आया, लीगल प्रोसेस से आया। बट वो सुनने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने क्या करा, फिर अपने ऑफिसर्स बुलाए और उन्होंने मुझसे बोला कि आप चलो हमारे साथ। तो कम से कम 15-20 सोल्जर भी, इंडिया के बॉडीगार्ड भी उनके सामने बच्चे लगेंगे। 6 फीट से ज़्यादा हाइट, 6.5 फीट से ज़्यादा हाइट, और ये चौड़े। और वो मुझे ऐसे घेर के, मतलब किसी ने ऐसे नहीं कि मेरे को हथकड़ी डाल दियो, हाथ पकड़ लियो, नहीं, मैं आराम से चल रहा हूँ, बट मेरे को लेके जा रहे हैं। ले गए थे, एक रूम था उसमें ले गए। वहाँ पर फिर दूसरे मिलिट्री ये सोल्जर्स आ गए, सिविल में थे वो लोग, और आके उन्होंने बिठाया, चाय नाश्ता रखा बकायदा, कहा कि आप लो और हम आपके बारे में चेक करेंगे, उसके बाद आपको जाने देंगे। लेकिन मैं डर गया था भाई, मेरे साथ तो कोई भी डर जाएगा, अनजान देश है। जब आप अपने सिटीजन की नहीं सुन रहे हो, फायजा के फादर की नहीं सुन रहे हो, तो मेरी क्या सुनोगे। तो उन्होंने क्या करा, बोले ये अच्छी बात हुई कि मैं अपनी सब चीज़ें, पासपोर्ट, अपना वीज़ा, अपने आने जाने का टिकट अपने गोप्रो के बैग में लेके ही चलता था। मैं कुछ भी अपने हॉस्टल में नहीं छोड़ता था। तो जब उन्होंने मुझसे मेरा पासपोर्ट मांगा, वीज़ा मांगे, मैंने सब रख दिया। बोले देख लो, मैंने कहा सब लीगल है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हुआ, उन्होंने देखा और उन्होंने पासपोर्ट देखा। तो पासपोर्ट पे क्या होता है, जब हम ईरान जाते हैं ना, तो वो स्टैम्प नहीं लगाते पासपोर्ट पे वीज़ा की, ठीक है, वो देते हैं हमें प्रिंट वीज़ा। तो उन्होंने, अब भाई तुम्हारा देश तुम्हें ही नहीं पता, तो इसमें मेरी थोड़ी ना गलती है। वो कह रहे कि इस पे पासपोर्ट पे स्टैम्प क्यों नहीं है। और अंदर से तो ये कह रहा था, मेरा मन कर रहा था अरे मूर्ख। लेकिन मैंने वहाँ ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने कहा सर ईरान गिव प्रिंट वीज़ा नॉट स्टैम्प। और एक प्रॉब्लम यहाँ वहाँ पे ये थी कि वो उनको इंग्लिश समझ में नहीं आ रही, वो फारसी में। अब उनको एक ऑफिसर बुलाना पड़ा जो इंग्लिश में बात कर सके।
फ़ायज़ा भी वहाँ पे नहीं थी, क्योंकि जो चेक पोस्ट था वो डिफरेंट था मैन वुमेन का। तो फ़ायज़ा एग्जीबिशन में निकल गई थी, एग्जीबिशन देख रही थी। फ़ायज़ा के फादर कॉल कर रहे थे, बुला रहे थे, और आवाज़ इतनी तेज़ थी वहाँ पे, इसको फ़ोन की आवाज़ भी नहीं आ रही थी। और हम दोनों बैठे हैं, परेशान हो रहे हैं, और उन्होंने मेरा फ़ोन भी ले लिया, गैलरी भी खोल ली, ये भी खोल लिया, सब कुछ उन्होंने देख मारा। मिल था ही कुछ नहीं, जब होने कुछ नहीं था, बट उन्होंने मुझे बैठाए रखा करीब 3 घंटे। फिर फ़ायज़ा आई 2 घंटे बाद, फिर वो ऑफिसर आया, उन्होंने इंग्लिश में बात करी, उन्होंने पूछा हमसे, जैसे आप पूछ रहे हो कि हम कैसे मिले, सेम उन्होंने पूछा। और फिर उन्होंने मुझसे कहा, मैं गया था दिल्ली से शारजा, शारजा से तेहरान, तो मुझसे बोले तुम शारजा क्यों गए, तुम डायरेक्ट क्यों नहीं आए? मैंने कहा भाई सस्ता टिकट था। तो वो, और जब ये सुना, मतलब मुझे पता नहीं फ़ायज़ा के फादर ने सुना नहीं सुना, वरना वो इस बात को भी कहते, देखा सस्ता टिकट, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। बैड एक्सपीरियंस से आप ये सीख लिया कि दोबारा से ईरान में एग्जीबिशन में जाना है? मैंने सच बता रहा हूँ आपको, मैं इस साल गया था, तो उस टाइम मुहर्रम का समय आ गया था, तो एक स्कूल के बाद सेम रिलीजियस बच्चे कुछ गा रहे थे मुहर्रम का, तो उसके फादर बोले सैम बोलते मेरे को, सैम मेक वीडियो में, मुझे माफ करें, मैं कभी नहीं बनाने वाला। और मजे की बात ये हुई, वो ऑफिसर आया, उसने इन्वेस्टिगेशन करी, एम्बेसी कॉल करी होगी, इंडियन एम्बेसी, वहां से सब कुछ ठीक ठाक था, डिटेल आ गया। हाँ, सब डिटेल आ गई। फिर मुझसे बोला, ओह यू आर आवर दामाद, वेलकम टू ईरान। मैंने कहा भाई 3 घंटे। We all were understanding them and their duties, but the only problem that all of us, when some were saying to me, by some I mean the workers, so you know it, and he was saying to me that okay, this thing that they are doing investigation and all this thing is understandable, but why? Even my father was saying this thing, that why before they know they're acting in a way, or behaving in a way as if for example, he's really a person like a terrorist, huh? Why when nothing is clear, they are behaving in an accusationally way, in accusational way. Man handling, वो थोड़ा ब्रूटल था, that was offending. हाँ, मैं कुछ, मतलब जैसे मैं कुछ बोल रहा था, तो वो एकदम से, we are saying you to keep quiet, like It was that. so bad. तो वो मेरे को बहुत बुरा लगा। मैंने कहा यार अच्छा, पहले मैं दामाद हूँ, थोड़ा इज्जत दो, खान-पान करो। नहीं, बाद में उसने बोला वेलकम टू, बोले समझ आ गया, वेलकम भाई, बहुत अच्छा वेलकम करा तुमने। तो अब यहाँ पे ये जो लव स्टोरी थी जी, ये कंप्लीट कैसे हुई? अब वहाँ पर तो पहुँच गए, अब घर वाले वहाँ पे परेशान है कि फाइनेंशियल इशू है, घर वाले देख रहे हैं कि इंडियन है, घर वाले देख रहे हैं दूरी है, रिलीजन है, तो इन सब इश्यूज में आपने इनके घर वालों से क्या बात करी? लड़के कुछ सीख लेंगे आपसे? हाँ, मैं आपको बताता हूँ। ये अच्छा, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन करा रखा भाई। मेरे पे बहुत इंस्टाग्राम पे मैसेज आए कि मेरी गर्लफ्रेंड है, उसके घर वाले नहीं मान रहे हैं, आपने दिवाकर भाई ऐसे क्या कर दिया? तो खैर गुरुदेव के आशीर्वाद से इतना है जबान में ताकत की, अगर कुछ किसी से कुछ बोलूँ तो वो समझ जाएगा। सबसे पहली बात है भाई कि अगर लड़की के पेरेंट्स, एक ये है कि लड़की आपकी बहुत ज़्यादा मजबूत है अपनी जगह पर कि हाँ उसने करनी है, उसके पेरेंट्स एक्चुअली आपको वो गैप दे रहे हैं बातचीत का, तो ये पॉसिबल है। अगर कहीं गैप ही नहीं है तो वो तो इम्पॉसिबल है। ये लड़की के माँ बाप ने कह दिया हमने करनी नहीं है, बात भी नहीं करनी, तो वो तो इम्पॉसिबल है। जब लड़की के पेरेंट्स कह रहे हैं चलो ठीक है देखते हैं, बात करते हैं लड़के से, भले से उनकी मंशा होगी ना करनी है, तो वहीं पे आपका सारा गेम वहीं पे आप जो है अपने शब्दों से कर सकते हो। और वही मैंने करा, शब्दों से नहीं करा, ये हकीकत भी है। सबसे बड़ी बात है आपको पिता के इमोशन समझने पड़ेंगे ना। आप जब पिता से बात करोगे लड़की के तो उसके इमोशन समझने पड़ेंगे, वही मैंने करा। सबसे पहली बात, उसके फादर में जो सबसे बड़ी बात है भाई, वो बहुत जो है एडवेंचरस टाइप के इंसान हैं, करेजियस हैं। वो 5 बार एक वहाँ का माउंट है वहाँ पर चढ़ चुके हैं, तो वो स्पोर्ट्स में ज़्यादा हैं। उनको ये चीज़ देख के ही बहुत अच्छा लगा कि मैं इंडिया से ईरान आया हूँ सिर्फ उसके लिए। तो उनको ये दिख गया कि हाँ ये मेरी लड़की से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। पहला पॉइंट ये था। उसके बाद चलो ठीक है, वो आपस में कि हाँ मैं मना करना ही आ तो गया, तो मैंने उनको समझाया, मैंने बकायदा उनको ऐसे करके हाथ पकड़ के समझाया कि आप ये ना समझें कि आप बेटी दे रहे हैं, आप ये समझें कि आप एक बेटा पा रहे हैं, ठीक है? क्योंकि 3 बहनें हैं, 2 ट्विंस हैं और बेटा नहीं है, तो मैंने यही दिया। बोला भी उनको कि आप ये समझिए आप बेटा पा रहे हैं। और रही बात डिस्टेंस की, अगर आप ये भी कहेंगे ना कि हर हफ्ते आ जा, तो मैं हर हफ्ते आ जाऊँगा। तो ये मतलब आज खैर वो तो फाइनेंशियल बात है कि हाँ नहीं पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये बात कहना ही बहुत बड़ी बात है। तो वो एक पेरेंट्स को कन्विंस करना
वो ऐसी कहा जा सकता है कि भाई इमोशन ऐसी चीज़ है जो किसी से किसी को जोड़ देता है। अभी जो हम लोग मुझे और फाइजा को देखते हैं, जो अब भी देख रहे हैं, वो लोग भी अपने जीवन में ना कहीं प्यार मोहब्बत से निकले हैं। तो वो इमोशन ही तो है जो वो लोग हमें देखते हैं, हमें इतना प्यार करते हैं। तो इमोशन से ही आप किसी को भी जीत सकते हो। ओके, अगर आप उसका इमोशन मैच कर लोगे। तो वो मैंने इसके पेरेंट्स के साथ किया, मैंने उनके साथ इमोशन मैच करा। हाँ, उनके हिसाब से आज भी वो सोचते होंगे कि आज भी इसकी फाइनेंशियल स्टेट ठीक नहीं है। मैं कहने को तो बहुत सारी चीज़ें कह सकता हूँ कि भाई मैं $10,000 या $20,000 खर्च कर चुका हूँ, इतना तो कोई लड़का भी नहीं करेगा। लेकिन कहने का मतलब यही है कि उनको राज़ी कैसे किया जाए, वो ऐसे ही किया जाएगा कि माँ बाप के इमोशन को समझो, उनकी जो बेटी से उनका लगाव है ना, वही लगाव आप उनको दे दो, तो वो समझ भी जाएंगे, वो आपको अपनी बेटी भी दे देंगे। और आप आज यही बात है कि उसके जो फादर हैं, बाबा, वो मुझसे इतना ज़्यादा उनका लगाव है और इतना ज़्यादा उनका मेरे ऊपर ट्रस्ट है। वो यही कहते हैं इसकी मदर से कि वो कर लेगा, वो जो चाहे वो कर लेगा, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। तो ये ट्रस्ट आपने अपनी build करा। कॉन्वर्सेशन से बिल्ड किया, हाँ। जब इन्होंने अपने पेरेंट्स को आपसे मिलाया, ऐसा जी, हुआ? जी, जी। राइट। सो ही मेंशन्स अबाउट फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। Yeah. That was one of the most resisting moment for you, maybe for your family, maybe not for you, but Yeah. maybe for family. How did you overcome that challenge, and how did your parents perceive that, because you were also funding some of his expenses as well? So how was that loop? Let me first say this thing that in this process, in those periods of time, I remember that even my father designed a list for me. Like he provided me with a list, and he said to me that, okay, look, I provided this list for you. In one of the chart, it is saying that the thing which you gain when you go to India, the thing which you lose when you leave Iran. Oh, right. Yeah, he was very much accurate. Okay. He's so very So he much, made a list for you. Yeah. What he was made a the list for me. topmost 3 points, both sides? He said to me that if you go to India, you gain him. But if you leave Iran, you leave your parents, you leave your job, you leave your friends, you leave your country, you leave everything. So he was like that. And he said to me that, look, in Iran, you have job. You didn't study this much that, okay, you become a teacher and suddenly you just put it away and go to another country that you don't have any job. Even I don't know, even for him, family very much matters. So he said that even I don't know his family. If you go there and they try to kill you, what should I do? And they were very much serious on this, because they were saying that, yeah, in Bollywood we see this thing that they easily kill the people. And they give the bribe, they give some kind of bribery to the police so it get over. Everything get okay. So they were very much like, they were thinking this way. My father even, more than my mom. And yeah, there was something, even there was another topic about, like, as you said, financial thing. And I have to say this thing that, like, I try to convince them by saying that, look, first of all, his financial things, his financial affairs are totally normal. But because the mindset of Iranian are very much according to the parents, very much. Like when you go to the normal financial state family house, you think that, oh my God, they're super rich. They're like that. They're very much into appearance at their home, in their look. Very much. They're very much into it. Like for example, that the sofas that we have, classical sofas, what we call, now they are 80 million to month. 80 million. I don't know how much in dollar it is. 80 million हो गया आपका, 60 million हो गए $1,000, और आप 80 million लगा लो, कितने हो गए? 60 million $1,000 हो गया, यानी 80,000, करीब 1,40,000 30,000 के सोफा. But we are normal family. We're totally normal. But the thing is that Iranian people very much take it serious. That yes, even if we are supposed to face the difficulties, we have to have this kind of things at our home. Even they're very much sensitive and careful about cleanliness. That much that there must not be any dust at their home. Dust is bad at our home. Dust nowhere. Not on the roof, not on the wall, not on. Not. It's all clean. Yes. Yeah, it's all clean. I was the second just one. kidding, No, it's okay, of course. So
that time I just try to show them that, yeah, look, the things that you see in Bollywood, please put them aside. I'm not expecting to live in a palace, palace that we stay and we watch in the Bollywood. I just want a normal house, and I want the more. And look, you can live with a person who is financially normal, but he is very much complete from his inside. But you cannot, I have an issue with this, but you cannot live with the person, live with the guy who is super rich, but he is a cheater. He has so much impurification in his inside. That's the thing. So my criterion is the inside of that person, is the nature of that person. And by saying all this thing, I try to convince them. So even at that time, my father was saying that, okay, after the time that he come back to India, he has to complete some other things. Like he has to have some kind of proof, evidence that it shows, okay, his affordability. We say affordability, yeah? Financial affordability, yeah. He can afford the things. There must be a proof. Okay. That I see and I become. So he gets satisfied that at least he is having this much X amount of money so that he can take care of you. Even more than, exactly. Okay. Even more than that, he wanted to come to India. He said that, okay, it is not enough for me that I see this thing. I have to come to India to check their house. Oh, ऐसा हुआ. Yeah. आए थे Okay. इसी साल. So ये ईरान बट ये शादी हो चुकी थी, वो मंजूर कर चुके? नहीं. अच्छा. मंजूर तो उन्हें करना पड़ा. देखिए मैं वही बात कर रहा हूँ कि जैसे पेरेंट्स को हमने समझा लिया, लेकिन उनके कहीं ना कहीं दिमाग में है कि यार मुझे नहीं करवानी है शादी. आपकी बातें सुन ली उन्होंने, बट जब लड़की जिद पे अड़ी हो ना, शादी तभी पॉसिबल है. तो ये जो शादी हुई है, चलो उनका पेरेंट्स को मैंने समझाया, बट उसकी जिद की वजह से हुई है. फाइजा की. हाँ, उसकी जिद की वजह से. तो ये जो पूरा टॉपिक चल रहा था जिसमें फाइजा इज टेलिंग की जो उनको प्रूफ दिखाना था, तो आपने प्रूफ कैसे दिखाया? प्रूफ में मैं बताता हूँ. इसमें क्या होता है, ये इनके लॉज में भी है कि लड़के के पास खुद का घर होना चाहिए, खुद की गाड़ी होनी चाहिए. और इनके यहाँ एक चीज़ भी है कि सर्टिफिकेट मिलता है. जैसे आप और हम हैं तो गवर्नमेंट हमें सर्टिफिकेट देगी कि भाई आप इतना कमाते हो साल में और आप जो है अफोर्ड कर सकते हो शादी को. लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है. तो वो उनको दिखाना होता है घर के कागज, गाड़ी के कागज की हाँ भाई मेरे रख लेंगे लड़की को. हाँ रख लेंगे. देखो मेरे पास घर भी है, गाड़ी भी है, और घर इतना बड़ा है, बड़ा है, घर में इतने कमरे हैं, और ये चीज लड़की की है. एक सोशल सिक्योरिटी के रूप में. तो आपने प्रूफ दिखाया? घर के पेपर दिखाए? मैंने सब दिखाया. ये रीति हमारा अपना ही घर है. हाँ अपना ही घर है, सब कुछ दिखाया. वो देखे उन्होंने. और इसके फादर को एक मतलब क्योंकि भाई वो गवर्नमेंट जॉब पे है, तो उनका पेपर वर्क बहुत मजबूत है. जब वो इंडिया आए थे तो भी उन्होंने डायरी मेंटेन कर रहे थे कि मैंने आज ये करा वो करा. तो उन्होंने सारे पेपर्स देखे, और जो एक होता है ना कंडीशंस, तो उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग मुझे उनको पेपर देने थे, और इंडिया के अकॉर्डिंग भी एग्रीमेंट कराना था अकॉर्डिंग टू इंडिया. तो मैं जो हमारे यहाँ एग्रीमेंट्स होते हैं ना, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट्स, तो वो मैंने उनके साथ करे कि हाँ भाई ये चीज़ मेरे नाम है और इसमें फाइजा जो है इतने % की मालिक है. ओके, ये साइन हुआ है? ये साइन हो चुके हैं. अच्छा, तो अब आपने मतलब अपनी प्रॉपर्टी का एक हिस्सा नाम कर दिया? नाम कर दिया मैंने. I was saying that yeah, whenever I do something, your parents again make me face something else as barrier. What should I do? What else I have to do? And I said that look, everything that they are doing for us, like they are doing. Do you think that they are doing this all things against you? But it is not like this. Look on it. How can I say? Look on the bright side of it. Bigger picture. See. Bigger picture. Yes. Looking on the other side, it is like this, that they are doing all these things for me because they want that I be comfortable in India and I don't face the serious challenges in India. Okay. So it is understandable. Even that time, my father said to him that, look, if I did all these things, not me, not I, not her mother, we are not supposed to take anything from your money. Even this much, it is not for us. It is for your own life. If I am serious about the house, if I am saying that the house must be under your name, because I don't want that, okay, something happened and you don't have any kind of place to live. I want you both comfortability. I want you both safety and Which life. is fair.
I think Which is it's fair. Yeah, Yeah. it's totally I think fair. it's because Even आप he दोनों के agree. लिए हाँ. आप दोनों के लिए है, आप दोनों का ही फ्यूचर अच्छा हो. सो अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ दिवाकर भाई कि आपने उनके पिता के साथ वहां पर क्या एग्रीमेंट्स ईरान के हिसाब से साइन किया और यहाँ पे क्या एग्जैक्ट एग्रीमेंट साइन किया ताकि आपका ये रिश्ता शादी में बदल सके. देखिए मैं पहले ईरान वाले बता देता हूँ. कुछ आप ईरान, कॉइन्स का भी बता रहे थे. हाँ कोइंस का, वो उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें बहुत लोगों ने बोले कि नहीं, Alright. इतने कोइंस इतने कोइंस. हाँ बताओ, आप हाँ. खुद क्लियर करो. दरअसल इनके यहाँ हर शादी में, ईरान में जितनी शादी होती हैं उन वो होते हैं इरानियन कॉइन्स. उनको पर्शियन में बोलते हैं व्हाट, बहर रज़ादी. बहर रज़ादी वो कॉइन्स होते हैं. हर कॉइन की वैल्यू फ्लक्चुएट होती है डॉलर के हिसाब से. तो फिलहाल जो उस टाइम मुझे पता था वो $500 था एक कॉइन की वैल्यू. तो इंडिया में जब मुस्लिम्स में शादी होती है वो महर बोलते हैं उसको, इनके यहाँ महरिया बोलते हैं. तो वहाँ तो यहाँ तो बोल देते हैं कि हाँ भाई 50,000 रुपये लड़का लड़की को देगा कभी भी. वहाँ होते हैं कॉइन्स और कॉइन्स की वैल्यू ज़्यादा होती है. तो जो मेरे उसमें कॉइन्स थे वो इसकी डेट ऑफ बर्थ थी 13,400 कुछ ऐसे करके, नहीं 13,400, नो सॉरी 3,000. No. Wait. 1,300. No. Is that half? No. 1,379. 1,379 Tamam, bahar coin. कॉइन्स. ये कॉइन्स है और ये कैलकुलेट कैसे हुआ? आप इसको 500 से 500 से मल्टीप्लाई कर दो. नहीं ये जो वन वो तो मल्टीप्लाई नहीं, वो तो ये 1,300 ये It is नंबर कैसा according है? to my solar Solar year. birth date. इनके यहाँ जो Okay. साल है ना हाँ. वो ये नहीं है 2024. इनके यहाँ चलते हैं सोलर ईयर. सोलर ईयर चलते हैं. Yeah. हाँ, जो हमारे यहाँ भी हमारे रिलीजन to में भी solar एक्चुअली calendar. हाँ. ये बिल्कुल सही है. इनका पर्शियन कैलेंडर है. इनका ये इंग्लिश कैलेंडर नहीं है, पर्शियन कैलेंडर है. Yes. हाँ. तो ये भी मतलब एक तरह से सनातनी है शुरू से. हाँ भाई, पर्शियन कल्चर वो ये हमारे भी, अगर आप देखो जब हमारी जन्म पत्री बनेगी तो वो इस हिसाब से बनती है. तो कॉइन्स इतने लिखाए गए. अब उसको आप 500 से मल्टीप्लाई करो जितना भी आता है. तो मेरा ये था भाई आप जो लिखवा रहे हो मुझसे आप लिखवा लो, मेरे को कोई इशू नहीं है. 500 से मल्टीप्लाई हुआ डॉलर के हिसाब से. डॉलर के हिसाब से आप डॉलर की वैल्यू से उसे कर देना. ओके. तो जितना भी अमाउंट निकल के आएगा करोड़ों में ही है. अच्छा. ठीक है. तो करोड़ों भाई अपने लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैंने कर दिया वहाँ पे. दूसरा एग्रीमेंट कुछ थे जो पर्सनल होते हैं, जो सेपरेशन का है और जो प्रॉपर्टी का है, जो पढ़ाई का है, बच्चों का है, ये सारी चीज़ें जो हमारे इंडियन लॉ में भी मौजूद हैं. मेंटेनेंस वगैरह होता है. ठीक है, वो लॉ हमारे लॉ में मौजूद हैं, लेकिन हमारे लॉ में ये तब दी जाती हैं जब इसके लिए आप कोर्ट जाओ. इसके कोई हमारे पास लिखित प्रूफ नहीं होता, लेकिन उनके यहाँ लिखित प्रूफ होता है. पहले से ले लेते हैं ताकि वो एक तरीके से लड़का थोड़ा प्रेशर में भी रहे और ठीक है, सब कुछ ठीक रहे. तो ये चीज़ मैंने वहाँ पे साइन कर दी है. और वही चीज़ वो इंडिया में चाहते थे कि इसी तरीके के एग्रीमेंट आप मुझे इंडिया में दे दो. तो वो चीज़ मैंने यहाँ साइन कर दी है. यहाँ पे क्या दिया आपने? यहाँ पे तो वैसे कॉइन्स तो यहाँ का कोई हिसाब ही नहीं है ना. फिर यहाँ पे तो वही घर में इतना हिस्सा 50%, कार में, प्रॉपर्टी में, और ये चीज़ का दिया है. बाकी पर्सनल वाले मैंने कुछ नहीं दिए. जो पर्सनल वाले होते हैं ना, तो वैसे भी यार अपने इंडियन कानून में आप देखोगे, अपने जुडिशरी में, तो ये तो वाइफ का वैसे भी राइट है. अरे पर वाइफ बनी है अभी तक कि नहीं, सवाल इसका है. अकॉर्डिंग टू लॉ है. हाँ, अब ये मुझे समझाओ कि आपने कुछ सिंदूर लगा दिया वहाँ ईरान में, वो क्या कहानी आपने धमाल मचा दिया? एक्चुअली वो तो यार इमोशंस में था. क्या हुआ क्या? मतलब अब मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि घर वाले मान गए. हाँ, प्रूफ हो गया, आपने प्रूफ दिखा दिया. अब आगे कहानी कैसे बढ़ी? कहानी जब मैं गया ना ईरान, मेरे दिमाग में, क्योंकि वो 2 साल की जो इमोशंस है, 2 साल के इमोशंस, इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, आज मेरे घर वालों ने ऐसा कहा है, तुम कब आओगे, कब नहीं आओगे, क्या नहीं आओगे, मतलब रोना धोना ये सब जो हुआ. तो मेरे दिमाग में मैं इतना ज़्यादा उसमें भर चुका था ना, मैंने कहा मैं किसी चीज़ का इंतज़ार ही नहीं करूँगा, मैं जाते ही ना उससे सबसे पहली शादी कर लूँगा. अच्छा. मेरे दिमाग में ये था कि मैं अपना प्यार मैं ऐसे ही दिखाऊंगा और मैं एयरपोर्ट पे ही करूँगा ये काम. अच्छा. ठीक है. और मैं रिंग लेके गया था, वो मेरे फादर ने बनाई थी. मेरे फादर ने बनाई थी अपनी बहू के लिए. ओह वाओ. हाँ, हम 2 भाई हैं, तो एक मेरे भाई की और एक मेरी. तो वो मैं अपनी मदर से लेके गया था. मेरी मदर ने दी थी खुशी खुशी, क्योंकि मेरी मदर इसको वीडियो कॉल पे देखती थी तो बहुत खुश होती थी. And you know the interesting point was that it was completely in the size of my finger. Wow. Completely. Wow. Not loose, not tight. Just same It was meant size. for you. Yeah, it was very much strange. वो बिल्कुल इसकी उंगली में फिट आई. तो मैं वहाँ पे गया, मैंने इसको देखा,
इसने मुझे देखा, ये तो शॉक हो गई क्योंकि उस टाइम हमारी वेशभूषा बहुत ज़्यादा अलग थी। तो इसने मुझे देखा, ये शॉक हुई, लेकिन मैंने उसी टाइम पहले मैंने जो है रुद्राक्ष की माला उसको पहनाई, ठीक है, गुरुदेव का नाम लेके। उसके बाद फिर मैंने अपने सभी जो है सभी आदरणीयों का नाम लेके और सभी अपने देवता का नाम लेके उसको जो है सिंदूर लगा दिया वहीं पे एयरपोर्ट पे मिलते ही। मतलब हम मिले, मैंने इसको, हमारा वो वाला नहीं हुआ जैसे हमारे वेस्टर्न में होता है, आपने देखी होंगी कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, लड़का इधर से आ रहा, लड़की इधर से आ रही, हग। मैंने उसको टच भी नहीं करा जाके, मैंने उसको टच भी नहीं करा। मैंने पहले उसको रुद्राक्षी माला पहनाई, उसकी जो मैंने रिंग ली थी वो मैंने इसके बुके में रख दी, इसको बताया कि ये जो रिंग है वो मेरे फादर बना के गए थे और मेरी मदर ने तुम्हारे लिए दी है। फिर हम लोग एयरपोर्ट में कैफ़े में बैठे, मैंने उसके लिए एक लाल चुन्नी ली थी और ये पूरे अपने उसी लिबास में थी, बुरखे में थी। तो मैंने इसको लाल चुन्नी उड़ाई, इसने पहली बार देखी इंडियन लाल चुन्नी, इसको मैंने उड़ाई और फिर मैंने इसको रिंग पहनाई और रिंग पहनाने के बाद मैंने इसको जो है सिंदूर लगा दिया। और उस टाइम पहली बार मैंने इसको माथे पे किस किया था, पहली बार। हाँ, उससे पहले बस कुछ भी नहीं, वो इमोशंस में हुआ। वो इतना बड़ा लोगों को लगेगा या सही में ये ऐसा कुछ करने की कोई सोच भी नहीं सकता ना, लेकिन ये जो भी हुआ ना, ये उस 2 साल के जो टाइम पीरियड में जो चीज़ें घटित हुई हमारे बीच में कि मैं तो करना चाहता हूँ लेकिन क्यों लोग तुम्हें ऐसे कह रहे हैं, मेरी इंटेंशन साफ है, मैं करूँगा, मुझ पे विश्वास रखो। वो कहती है मुझे विश्वास है लेकिन वो ऐसा कह रहा है, ये ऐसा कह रहा है। मैंने कहा जाते ही प्रूफ कर दूंगा, दिमाग में ये था ना कि जाते ही कर दूंगा, ज़रूरत ही नहीं रहेगी, वहीं पे शादी कर दूंगा। और मेरे हिसाब से जब आप दिल से किसी को बीवी मान लेते हो, पत्नी मान लेते हो, तो उसमें 7 फेरे की भी ज़रूरत नहीं है। वैसे हम करेंगे बट आपने मान लिया ना, आपने मान लिया बस फिर पत्नी है। तो मैंने उसको मान लिया और मैंने वो एयरपोर्ट पे हो भी गया और फिर वो जो चीज़, वो जुड़ाव रहा वो अभी तक है। तो ये इमोशंस मैं बता रहा हूँ ना। Faiza, how was it? Because his story is very emotional. I think all the boys will relate to it because in India, our tradition is that as and when a guy puts sindoor, so that is a kind of an emotion that is very special for the couple for the entire lifetime. And because you were, I suppose you didn't know much about the culture. So when all of this was happening, all there in the public, how was your reaction? What were you feeling? What's happening with this red? First of all, I got surprised because I didn't have any idea that what he's supposed to do, and he was saying, "What are you doing? What are you doing?" Because he was at the time he was bringing out that sindoor thing. Sindoor, yes, I'm right. Yeah. So then he first of all he he rubbed my hair with the chunni, and he put that chunni on my hair, and after that he was about to bring it out, completely bring that sindoor container out. And I was like, oh, that is that red thing that I saw in Bollywood. Oh, you wanna do this thing? So even I thought, I didn't know that the finger is important, which finger is important. I was like, oh, it is not like this. And he said, with this finger, like this one. Yeah. So he did it, and I felt very much strange and surprised. But I also it was very much, how to say, long distance relationship is like this, that when you see the person, like I am seeing him, I'm seeing you, I have both your physique and voice, okay? But in long distance relationship, it's just like that you have only the voice. Even if you see the person, no, you still don't have the physique. It was first time that I saw him. It was very much, even I feel embarrassed. I feel shy. Because I was thinking that, that time I was with a voice. I had a relationship with a voice, really, with a voice. And with a voice, or maybe, with the image of him, with the fame of him, but not with he was not physically present. Not physically present. And that was so different. That feeling was so different. And that time, how can I describe it? I don't know how to put my words in a way that I can describe it, but it was so strange. And I feel shy, as if he was not another person, but he become more complete for me, like, I'm
my God, now he's here. Oh my God, now even I can. He's beside me. It was very much. It was very So much this helped you strange. develop trust, and with this event, you did you feel more personal that yes, this is something serious? Did you feel that? No, before he come, I was serious. Okay. Before he come, I was super serious. Every person, even my sister, like friends that I never blamed them. All of them were thinking about me. All of them wanted the best for me. I know that, and but just looked at everyone that time, tried to demotivate me, in her or his own way, maybe for a good intention or bad intention, because some of the people also not my sister like friends, even not my family, some of them feel some kind of jealousy that another guy from another country, how can it is not possible that he come, and is it possible that a guy hasn't see you in person and he's that much in love with you did he come from his country to, they were thinking. It's so that was everyone tried to demotivate me, but I was that much sure that I never get influenced. So even before he come, I was You sure were ready. about it. और Yeah. इसमें एक चीज़ बताता हूँ, मैंने बताया ना, मैंने उसको टच भी नहीं करा जब हम लोग मिले, और हम बहुत ऐसा भी नहीं हुआ कि पकड़ के एक दूसरे को, उसके बाद भी जब हम एयरपोर्ट से बाहर गए और हम रुके भी फ्लाइट पे, तो ये भी नहीं हुआ कि एक दूसरे को हक करके हम जो है बहुत ज़्यादा रो रहे हों। ये तब हुआ जब मैं तेहरान से हैमदान गया, मैं हॉस्टल में रुका, और पहली रात में मैं रुका, अगले दिन मैं सो रहा था, मुझे पता नहीं आ गई अचानक से, और आगे इसने मेरे को यहाँ पे किस करा, हाँ, और मैं उठा इसका फेस देख के, फिर मैंने इसको हक करा, और मैंने सिर्फ इसके कान में इतना कहा, लुक नाउ आई एम इन हैमदान। और ये जो रोई है, ओ भाई, वो वाला जो बहुत बुरा, उस टाइम मैं भी बहुत इमोशनल हो गया था। आई सेड यू ना आई विल कम। सो उस टाइम जो है, उस टाइम थोड़ा वो बहुत ज़्यादा रोई, फिर मैं भी इमोशनल हो गया। और उस टाइम की पिक्चर्स हैं हमारे पास, अभी फोटोज हैं, इसकी फ्रेंड ने क्लिक करा था। तो वहाँ मतलब आप ये सोचो कि मतलब एक रिलेशनशिप में भी एक इज्जत कैसे मेंटेन की जाती है, आप समझ रहे हो? ये नहीं कि मैं उससे मिल लिया तो भाई मैं तो एकदम पागल हो गया, मैंने हक कर लिया उसको, ये वो जो पेशेंस होता है ना रिलेशनशिप में, बहुत ज़रूरी होता है हर चीज़ का। कि आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, आप मिले भी हो, तब भी आप में उतना पेशेंस है कि आप जो है देख कर रो नहीं रहे हो। वो चीज़ रियल है ना। वे थोड़ी है कि हाँ भाई आप बात पे रो रहे हो, याद आ रही है, नहीं। पेशेंस बहुत ज़रूरी है। राइट। सो फिर हाउ डिड दैट हैपन व्हेन you decided to leave Iran? What was that moment, and how did your parents agree to it, and how did that all happen? My parents still have problem. Yeah, still they have problem with the distance. Not with marriage. They really like him, but and they did study. I accepted him as not son-in-law but son, and but the thing is that they have problem with the distance that I have. We have with them, and they're always concerned about me. And even if I wanna say, that is why that I never, even I believe that never say the marital affair things to others. Okay, so that's why I don't say even some small things to them, some small thing that has to do with our marital status and this thing to them, because they become super not only concerned but even stressed worried out. about it. Stressed out even. So the time. I don't know, it is not in my control. Sometimes if my tear come out, I say it is okay with me. Even the time that I get happy, sometimes my tear comes out. So it is very much normal. That time, I remember that, I had a big challenge about it. Big challenge. And they always wanted to reject him. And one of the, let me say 90% of it. 90% of the reason was because of distance. So it was very much hard. It was such a hard duty on me that how can I deal with it? Deal with the challenge.
My father, after the those sweeter sessions, I mean those khastakari sessions, when everything was about to be solved, and my father, when everything was about to be okay, and everything was for my parents, I mean, and everything was about to get more and more serious, I remember that my father that time said to him that, look, even he cried a bit, and he said that look, I bothered her a lot for this marriage, and all the reason was that because I love her. So, yes, it was like this. So he said to me also that because you love him, I'm okay. Go. Did you feel that this is true love? Of course. And the thing is that my parents, because of me, they put their faith, it is the proverb in Persian, we say, they put their own faith on their own heart because of me. They stop their, like, not stop the feelings, but they try to repress their emotions just because of me. And my father is very much dependent on me, more than my sisters. Yeah, I am saying, even before the time I come to this world, even he was not married that time. He was thinking that I would have I would have a daughter, and her name is gonna be Mona, and she always go to school by the boat. It's some kind of a story made thing. Yeah, so because of me, they really. But I really can say that you are really well raised, and your father is a kind person, that he respected the relationship and the most beautiful emotion in the world, and that is love. So huge respect to your parents, that, you know, as a woman, as a girl, they allowed you and they trusted you. I think it's a huge thing, and a big applause to your father for doing that. Fantastic. And even your courage for taking the step. I agree. I really agree. Yeah, thank you. जब हम लोग वापस आ रहे थे तो उससे एक रात पहले इसके फादर ने मेरे को एक पूरा लेटर दिया था. Yes, letter. और उसमें सब चीज़ें लिखी थी कि मैं इस शादी के लिए बिल्कुल राज़ी नहीं था, और इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, मैं इस वजह से राज़ी नहीं था, लेकिन सिर्फ मैं अपनी बेटी के प्यार के आगे जो है झुक गया, और तुमने मेरी बेटी मुझसे छीन ली और लेकिन अब तुम उसका ख्याल रखना, क्योंकि वहाँ पर इंडिया में, भारत में, तुम ही उसके पिता हो, तुम ही उसके माता हो, तुम ही उसकी बहन हो, तुम ही उसके दोस्त हो, तुम ही उसके पति हो. तो उसका ख्याल ऐसे ही रखना, और अब तुम हमारे बेटे हो. और जब फ़ायज़ा की सिस्टर हैं बीता मेहता, वो तुम्हारी सिस्टर हैं, तो हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम जीवन में बहुत तरक्की करो. तो मतलब वो लेटर बहुत ज़्यादा इमोशनल था, और अभी तक रखा हुआ है मैंने वो, और मैंने कभी नहीं दिखाया, मैंने अपनी वीडियोज़ में भी नहीं दिखाया उसको, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं वो पर्सनल होती हैं. लेकिन जब मैं वहाँ से, हम लोग वापस आ रहे थे, तो फ़ायज़ा का कहना था कि आप हमें एयरपोर्ट तक छोड़ने मत आना, हम यहीं से टैक्सी से जाएंगे. उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि मतलब आप खुद सोचो, वो बहुत बड़ी चीज़ है कि अब उसको ये भी नहीं पता कि मैं वापस कब जाऊँगी. मुझे तो पता है कि मैं 3 महीने बाद इंडिया वापस आऊँगा. 3 महीने तक जब मैं ईरान में रहा, तो मेरी माँ का जो हाल था, रोज़ फ़ोन पे रोना, तू कब आएगा, तू कब आएगा. वो सोचो, अब तो वो आ गई है, उसको पता भी नहीं मैं वापस कब जाऊँगी. तो वो चीज़, सब चीज़ उसके दिमाग में चल रही थी. उस टाइम मैंने उसके फादर को हक करा, बाबा को हक करा, एक बार करा, फिर मैं हट गया, फिर मैंने उन्हें दोबारा हक करा, और उस टाइम मेरे आंसू आ गए थे भाई. फिर वो रो पड़े. वो बहुत ज़्यादा, मतलब समझो, डिफ़िकल्ट टाइम था. बट तरह से लड़की की विदाई हो रही है. मुझे बहुत बुरा लग रहा था, मुझे सही में बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि एक अटैचमेंट ना पूरी फैमिली के साथ था,
मतलब इमोशनल बॉन्ड आपने बनाया है। बनाया है। पहले तो होता कि रिश्तेदार बना देते, विचोला होता हमारे अंदर तो। मैं भले से अलग अपार्टमेंट में रह रहा था वहाँ पे रेंट में, बट रोज का खाना डिनर करने वहीं जाना, 3 महीने तक उनके साथ घूमना फिरना, रिलेशनशिप बन जाता है। वो इतना अच्छा बॉन्ड। और जब आपको इतना ज्यादा प्यार मिल रहा है, रिस्पेक्ट मिल रहा है, तो उस समय जब आपको पता है यार अब मैं जा रहा हूँ, मुझे पता नहीं मैं कब वापस आऊंगा, तो वो चीज़ बहुत ही ज्यादा, मतलब ऐसा था ना कि गला दर्द कर रहा है और दिल भर गया, वो वाली था। लेकिन हाँ, मैंने कंट्रोल करा। मैं इसलिए करा, मैंने कहा अगर मेरे साथ हुआ तो वो तो बहुत रोएगी। और ये भी चेहरे पे बिल्कुल नहीं दिखा रही थी, लेकिन स्ट्रॉन्ग गर्ल। Oh, thank एयरपोर्ट you. से लेके और इंडिया आने तक प्लेन के अंदर वो सब इसके चेहरे पे नजर आ रहा था। जैसा बार है। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे आके, अगर मान लीजिए जैसे घर है, घर की बातें हो जाती हैं, कुछ सास बहू में बातें हो जाती हैं, तो अगर मैं इसका गलत चीज़ें भी इग्नोर ना करूँ तो वो नाइंसाफ़ी होगी। 100%। ठीक है। तो मैं इसकी अगर कुछ ऐसी चीज़ है जो मतलब जिस पे जाहिर सी बात है, जब मैं ईरान में इसके साथ होता था मेरी बहुत सारी चीज़ों पे गुस्सा आ जाता था, लड़ाई भी हो जाती थी, बट यहाँ पे मैं उन सब चीज़ों को दरकिनार कर देता हूँ, सिर्फ इस वजह से रिस्पेक्ट और इसके जो फादर के वर्ड थे कि सभी तुम हो वहाँ पर इसके लिए। बिल्कुल ठीक है। तो मैं उसी तरीके से हर चीज़ जो है, हर चीज़ का किरदार मैं निभा रहा हूँ उसके लिए। हाँ, वो उसकी हर एक चीज़ की वो बिल्कुल डिमांडिंग नहीं है भाई, बिल्कुल भी डिमांडिंग नहीं है। उसको बस खाने में कुछ चीज़ें पसंद है, वो भी ऐसे कहेगी आराम से कि हाँ मुझे वो पसंद है, तो मैंने कहा चल ठीक। क्या पसंद है? What do you like to eat? Here, I like first of all matar paneer. Matar paneer. Yeah, matar paneer, shahi paneer. I like matar paneer more than shahi paneer. Okay. And momos. Momos, yeah. And pani puri. Pani puri. Yes. And even sometimes dal makhani. Dal makhani, my favorite. And new crush. Wait. What is your new crush? Food? You mean? Of course. क्या कहा? Of course, food. Sorry, I don't know why I said that. My food. Wait. I don't know what you said. That is that in which there's potato. Yes. Much peanut. Sammy, you are saying food. Peanut is not food for you. No, Okay. peanut is not food, but peanut. I like the hard peanut. Hard peanut. Hard peanut. All right. Yeah, it is really, and even it is bad for me actually. Oh. I must not eat that much because it is, it makes the blood thick. So I must not eat that much. Yeah. All right. So वहाँ पे आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, तो वहाँ पे कुछ शादी का कोई सेरेमनी भी की? हाँ, वहाँ पे कैसे हुई? वहाँ पे पहले होती है कोर्ट मैरिज के बाद उसके अनाउंसमेंट होता है। जो कोर्ट मैरिज होती है उसमें गिने चुने रिश्तेदार आते हैं, एक वकील होता है, जैसे हमारे उसमें इंटरनेशनल वकील था। Documenting on all this thing. वो वकील जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ता है, लड़का लड़की एक स्टेज बना होता है, मैरिज हॉल में होता है, वो मैरिज ऑफिस होता है, उसमें बैठे रहते हैं ऐसे करके आराम से, अच्छे वही कपड़े पहने रहते हैं, और लड़की जो है बुके लेके रहती है, उसके जो क्रिश्चियन वेडिंग होती है, ऐसा है कुछ काइंड ऑफ। ओके, उसी तरीके का है। ओके। तो जो वकील है वो सब कुछ पढ़ेगा, हाँ जी ठीक है, ये तुमने कहा है, सही कहा है, गलत कहा है, तो उसको कहते हैं बैले, यस को बैले कहते हैं। तो जब उसने कहा ठीक है, जब मैं कहूंगी तब तुम बैले कह देना, मैंने कहा बैले। तो And let me add something, please. Most of the boys and girls think in this way that yes, a good relationship is a relationship in which there is nothing like discussions and fights. Let me say this thing that even in our wedding, we had the fights, we had the discussions. And I don't want to say bad thing about it. I want to say this thing that these all fights, these all discussions are just making the method of knowing each other clear for you. You know your partner better. You know what he likes, what he does not like. You know his red lines. You know. So it is understandable. Consider all these fights and discussion in this way, but always respect each other. And there is nothing bad in fight till the time that we respect each other. Till the time that we don't. Cross the red line. So now what we have that because we have heard your amazing story, it's beautiful. Thank you.
Now we have got one special round to know how well you guys know each other. All right? Yes. Should we go ahead? Oh my god, Yeah, I of like this course. kind of things. Let's see. So अब हम आपके पास क्या करेंगे, एक बोल में चिट्स होंगे. So this one bowl, we have some chits inside. एक एक करके आप उन चिट्स को निकालेंगे और उन चिट्स में कुछ लिखा होगा, truths या dare. तो आपको उसको परफॉर्म करना है. Are you guys ready? Oh my god. Of Let's get course. started. Yeah. Oh So my god. you So might, exciting. yes. So you might have to draw something as well. So here are your drawing books. Okay. These are your markers. Alright, so ये बॉल मेरे पास है, तो इसको हम आज एक टास्क होगा, देखते हैं कि इस टास्क में कौन जीता है. 1 versus 2. Alright, so who do you think will win this task? Because my drawing skill is good. Okay, alright, let's see. Let's see. Okay, It so let's start with Fez. Okay. Let me take it. He must not see. No, he can see it. Oh, he can It's see. all- yeah, Okay, yeah. okay. I have to Yeah, you have to read read it it out. loud. Yeah. What is your wildest fantasy? Okay, Truth. alright. So Okay. wildest fantasy का सवाल है. Wildest. Wait, let me. My wildest fantasy. Tick tick 1. Tick tick 2. No, wait. Tick tick 3. Tick tick 4. Divakar is winning this point. I don't know. I don't You have know. many. Really? Wait. Say. Those kind of crying babies, I really want to slap them. Oh. Yes, oh. those out of respect ones that they don't know how to respect, and they are very much and they're very much spoiled. Mommy, I really hate them, and I want to slap them. If they even if their faces are not cute, I really want to slap them. Oh, Yeah. you're gonna slap crybabies. Yeah. Okay, alright, And alright. spoiled babies also. Spoiled babies Yeah. also? Yeah. At the same time, they have to be both spoiled and crying. Yeah. That, Fantasy yeah. that. It is the fantasy. Yeah. No, I really want it. Like Elena. Okay, Oh my god. alright. If my aunt is watching this video. Oh my god. Uski cousin. Okay, alright. Okay, so I'll take this chit out, and now Divakar, this is your turn. Okay. ठीक है भाई. Worst habit of your partner. Worst habit. Worst habit, is it? Okay. हाँ, worst अपने पार्टी की सबसे बुरी हैबिट बताइए. पूरी Worst. habit. What do you think he's gonna say? Let's test. Okay. Sometimes say to me that like don't be nosy this much. Nosiness sometimes, and sometimes he also say to me that like I don't have this kind of intention, but sometimes he misunderstands me and he think that I am not taking his side. So and it is really I believe in this thing that the husband and wife will have to be always with each other. So sometimes I feel that I don't get his back, and also very. Let's see what he has to say. Yes. Say. आपको क्या लगता है? मैं अभी इंडिया की तो बात नहीं करूंगा, मैं ईरान में इसकी एक चीज से बहुत ज्यादा मेरे को दिक्कत थी, वो थी ओवर हाइजीन. ओवर मतलब ओवर स्वीट, शुगर कोटेड. हाँ. शुगर कोटेड होना मतलब आप समझ रहे हो. हाँ. कोई जैसे मेरे को बहुत बुरा लगता है इससे जैसे हम टैक्सी वाले के साथ जा रहे हैं. हाँ. तो ये मतलब इतना ज़्यादा अच्छा बन जाएगी कि वो बंदा सामने से कुछ भी बोल देगा. ठीक है, ऐसी बहुत सारे इंसिडेंट हो चुके हैं इसके साथ. इसके फादर ने बोला, एयरपोर्ट पे भी हुआ था कि भाई जैसे ये कोई बात करेगा तो उससे बात ही करती रहेगी. हाँ, फिर वो बंदा कुछ ऐसा बोल देगा, फिर बाद में कहेगी मुझे बुरा लगा इस बात का. तो मेरे को बहुत गंदा लगता है कि हाँ कि जब किसी से बात करती है तो बिल्कुल ही बात करती रहती है, ये नहीं सोचती कि सामने वाले के अंदर शायद कुछ और चल रहा है दिमाग में, है ना. तो इस वजह से मेरे को इसकी ये हैबिट बहुत बुरी लगती है. Alright. Okay. Alright. So now this is your turn. Let me shuffle a little. Alright. Please.
So there. Dare, yay! What is It is there. So stare into each other's eyes without laughing or breaking contact. Okay. Okay, so this is for what? Without laughing. Oh my Without God. laughing and breaking contact. He is the winner. Okay, We let's did see. it before. Let's see. All right. आपको एक दूसरे को देखना है. अब देखते हैं इसमें कौन जीतता है. हंसना नहीं है. You don't have to laugh. और आपको अपना contact तोड़ना At this moment, he is the most funniest being all around the world. है. All right. 1, 2, 3, go. एक तरफ है दिवाकर, दूसरी तरफ है फैजा. फैजा आंखों में देखना है. You have to look at the eyes. Yes, eyes. आंखें बड़ी होती जा रही हैं धीरे धीरे. यहाँ से दिवाकर हल्का हल्का स्माइल कर रहे हैं. फैजा अरे भाई Dear again. Make your partner smile with different facial expressions. Okay. Can you read this, please? Okay. Make your partner smile. Okay. I am that much, I think, cute in face that without doing anything. he Oh can- my God. Let's see. All right. Now आपका ये काम है कि आपको स्माइल नहीं करना, पर देखना. हाँ. I want to use a very much famous tactic between my twin sisters and cousin that you know. That kind of beautiful smile, you know? We name it as beard smile. yeah Why don't laugh? Actually, this kind of a smile has been named by one of my cousin named Faima, and Faima literally feel very much gross when she sees some of the girls smile like this in front of camera, and she named it as beard smile, like. So she named it as this. So yeah, actually, it is beard. Sorry, mustache smile. Mustache mustache smile. Here is mustache. So she named it as a mustache smile because the part of the mustache become white and the lips become like this. In Iran, it is very much, unfortunately. And so yeah, so. Interesting. So आप इसमें हार जाते हैं and Faiza wins. Again, here you go. Okay. I guess again it's a dare for you. Is it? Really? I don't know. Let's see. Yes. Recreate your first. Oh, recreate your first date. Whoa. Recreate? Yeah. Recreate your first date. चुन्नी कहाँ है So, कहाँ है चुन्नी हाँ. तो कैसे हो सकता है? So this so is. let me be in this kind of expressions. हाँ, right. कुछ virtually करिए ना. So I think let's make it a virtual moment for both of you. yeah. I'm very much happy that you are here. Oh my God. अच्छा मुझे भी करना आपको you are the main character. Action. Oh, what are you अरे यार, doing? मैं क्या कर रहा हूँ चुन्नी Oh, the name of it is Right, Chunni. it is How Chunni. beautiful. Oh my God. And here is, there is Fatima, my friend, that is married. That's your friend. Oh my God. So beautiful. अच्छा मैंने सिंदूर जेब में रख रखा था Oh, I think it is that thing. nothing Oh, okay. can I put it like everyone is watching It's okay. Yes, of course. It reminds me of ये मैंने Bollywood सच में भी things. पूछा था हाँ, अरे. It reminds me of Bollywood things. Okay. So where's my ring? you have ring. to be here come no Oh. that thing I do though You didn't put that ring in my. हाँ रिंग रिंग तो रहेगी भाई ठीक है which finger ये भी मैंने पूछा था This one. okay ring Yeah. Great job, guys. Beautiful. भाई यहाँ पे जब हम लोग शादी करेंगे ना अभी खैर मैंने उसके बारे में बताऊंगा कि कब करेंगे बहुत लोग पूछते हैं कहते हैं कि भाई फायजा ने सिंदूर क्यों नहीं लगाया है फायजा चूड़ी क्यों नहीं पहनती है या सनातन कल्चर से देखो पहली बात तो मैं किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करता हूँ लेकिन हाँ एक ट्रेडिशनल वे में देखा जाए तो हाँ सिंदूर लगाना चाहिए वो अभी तक इसलिए नहीं लगाती है आपको सच बता रहा हूँ जब से वो आई है फिलहाल कहने को हम शादीशुदा हैं पति पत्नी हैं बट जब तक हमारी शादी नहीं हो जाएगी तो
मेरे कल्चर के हिसाब से, मेरे रिलीजन के हिसाब से वो नहीं है, ठीक है। तो अभी ये शादी वाली बात आई है, तो उसमें ये चीज़ निकल के आई है कि अभी के लिए हमें रुकना होगा किसी कारण की वजह से। ग्रहों की चाल है, क्या है उसके बारे में, मतलब बहुत लंबी कहानी Okay. है जो घर वालों को बताया गया है। अगर हम अब शादी कर लेंगे तो हो सकता है प्रॉब्लम्स आ जाएं। मतलब एक एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ, आपका हाँ, वो अभी टाइम सही नहीं टाइम है। सही नहीं तो है। कब तक एक्सपेक्टेड है फिर भी टेंटेटिव व्हाट इज नेक्स्ट ईयर ही देखेंगे, नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर? हाँ, ओके, ऑलराइट। वो चीज़ हम नेक्स्ट ईयर करेंगे। तो ये शादी वाली बात थी। ओके, राइट। सो कुछ आई थिंक My लास्ट, turn. या योर टर्न। Dear, say I love you to your partner without speaking. Okay, you I think very good in that. Okay. Korean drama. All right. And say in Hindi? हाँ, हिंदी. मैं तुमसे प्यार करती हूँ. Oh my God, cute. So this is the last one that you need to draw each other's portrait in 1 minute. 1 minute. No. 1 minute. Ready? One second. No, wait. Let me just Wait. use my timer. Let's try. This is the last task for both So of may I you. do this thing? Yeah, sure. 1 minute time. Let's see who makes the best portrait in the world. Okay, 1. 2, 1 in 3, 2, 1. Your time starts now. All right. Beautiful. आपका सर्कल भी सीधा नहीं है. ये 2 नंबर क्यों लिख दिया बीच में? ये मुझे क्या बता दिया आपने? Okay. All right. Nice. कुछ बाल तो बनाओ, लड़कियों के बाल प्यारे होते हैं. हाँ यार। Okay. My mine is like Okay. like a girl. All right. Oh my god, it's very much bad. 30 seconds left. Really? Yes. 26. No. Wait. Alright, ये बीच में आपने इस रोबोट क्या बना दिया है? ये दिखाना बहुत जरूरी है. This thing, so Alright, who's this? Is it clown or what? Okay, nice, good. Because- 15 because seconds. I am- 15 seconds. 12, 11, 9. Interesting. Oh, okay. Faisal's done something really nice. 2 and 1. Alright, so Sorry. the time is up. Alright, guys. Alright. So one by one, I really want you guys. Just keep the mic a little closer. Now let us firstly, I want you guys to show the beautiful portraits which you have created of each other. Starting with Devakar bhai. Ta-da! Oh my god. Please show it to the camera. So lovely. So ये इन्होंने बनाई है फैजा और कुछ मत बोलना। थोड़ा सा जस्टिफाई भी कीजिए बाल जो 4-5 आपने But look बनाए how much detail did he shoot my hair in a wavy way. Yeah, He's right. it's like that. Okay. प्यार ऐसा होता है। प्यार ऐसा होता है। ये बीच में ये square, what's this robot? Is it like this? Actually, it is very much. It is so good. Don't Okay. worry. It's so good, but Look, क्या हुआ, मैं अगर गोल बनाते तो वो कहती कि तुम मोटा बना दिया। मैंने कहा ऐसा रखते हैं। Slim. look at this part of my hair. Yeah, this is nice. Yeah. Uh, So, by- out of 10, how much would you want to give this much? because I know his drawing talents and he actually did his best. Did his best. So no, because according to his drawing skills and talent, so I give him 10. Really. Yeah. 10 out of really, 10. Because I am. Oh, really? Yeah, because first it was 1 minute, and after that I am rating him according to his drawing talents and skills. Wonderful. Now, Yeah. like you to show how Devakar looks. First, let me say to you, everybody, that it is some kind of cute style. Oh my God. Yeah. And sorry to draw it this much short. Mm-hmm. But it was like I lacked time. It was one. Really, my drawing is not this much bad. But I had just 1 minute. So the thing that you can see is that his beard and mustache, even his hair, and I tried to actually shows his eyebrows in a very much good way. Even if you look, really, it's No, it's actually good. It's actually good. If you've seen just 1 minute time, yes. I really like that heart as well. So what does that signify? It is a balloon actually, Okay. and it is in a heart shape, Mm-hmm. and on it there is a name. That name is Mona. Aha! Yes. And here we have this on his neck. Okay, all right. The beats. Yes. Okay, wonderful. Good job. So आप कितने अंक देना चाहेंगे? Full.
Full 10 out of 10. 10 दोनों of 100, super 10 out of talented 100. नहीं है. 10 out of Great 100. job guys. Great 10 job. out of 100. No, 100 out of 10. दिवाकर भाई एक ना बड़ा सवाल आता है. जी. अब जब एक तरफ प्यार है और एक तरफ धर्म है. ठीक है. अब काफी लोग आई एम श्योर आपसे पूछते होंगे कि क्या आज फैजा हिंदू है या मुसलमान. तो आप फैजा को आज क्या सोचते हैं और आपके मन में क्या है कि इन फ्यूचर चल के शादी करने के बाद आप फैजा को अगर वो अपना धर्म फॉलो करना चाहती हैं, वो नमाज पढ़ना चाहती हैं, तो आपको लगता है वो पाथ ठीक है, या शादी करने के बाद आप चाहेंगे कि जो सनातन धर्म है उसके ट्रेडिशंस फैजा फॉलो करें. बहुत बढ़िया राघव भाई क्वेश्चन करा आपने. इस चीज़ के बारे में कमेंट सेक्शन में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं और बात भी होती है कि हाँ भाई फ़ायज़ा सिंदूर क्यों नहीं लगाती है, चूड़ी क्यों नहीं पहनती है, साड़ी क्यों नहीं पहनती है. फर्स्ट ऑफ ऑल भाई सनातन सबको इजाज़त देता है कि भाई आपने जो मानना है आप मानो. यही सनातन की खूबसूरती है. सब धर्मों का सम्मान है और कहता है भाई भगवान तुम्हें किसी भी तरीके से मिल जाएंगे, ये तुम पे है, तुम खुद खोजी बनो और खुद ही ढूंढो. जब मेरा धर्म मुझे ये सिखाता है कि सबका सम्मान करो, तो मैं कौन हूँ जो उसे कहूँ कि तू ये कर. और रही बात उसका रिलीजियस होने की कि वो नमाज करना चाहे या अपना जो है उसका रिलीजन फॉलो करना चाहे, कंप्लीटली उस पे है. वो पहले भी नहीं करती थी, वो अब भी नहीं करती है, वो आगे करेगी तब भी मैं कुछ नहीं करूँगा. जबकि उसके फादर मेरे घर में, जब उसके फादर तो रिलीजियस हैं, वो घर में नमाज करते हैं, वो कहाँ करेंगे. मेरे घर पे हैं तो मेरे घर पे ही करेंगे ना. मेरे पेरेंट्स को एतराज़, ना मेरी फैमिली को एतराज़, हमें किस बात का एतराज़. तो हमारा धर्म ही हमें सिखाता है कि भाई तुम किसी को बांधो मत. So Faiza, now he has a very open-minded approach to it. And as a person, because you're coming from a faith, a particular belief, a religious community. Now, at times, do you feel that if he asks you to maybe wear a Mangal Sutra, or he asks you to wear a sari, he asks you to wear tilak, or maybe he asks you to wear sindoor, he wants you to maybe dress in a particular way, would you be open to that? No. Because like we got clear about it on over all these things we got clear. And what makes the life basis, marital life basis, and fundamentals very much strong, and what makes the marital life beautiful, healthy, is just two-sided understanding. So if Sam started imposing such things to me, I was thinking about not only he is imposing such things. Okay, he is imposing the way that I wanna wear some things. Someday he imposes something else. It is not about just something. It is not about just a special thing. If he has this thought of imposement, definitely he will show his other imposements. And this imposement is not something. It is out of bias, and bias is not something that makes the life beautiful. It is very much destroying. Okay. All right. So as of now, you consider yourself a Hindu. You consider yourself as a Muslim as of now. And until unless you guys are exploring, and in future, kabhi aisa lagta hai ki if she feels or you feel maybe anything, then you guys will explore to something else. So has he ever introduced you to any Hindu gods? Yes, I know. Okay. Of course, I know. Wow. Like I know Krishna ji, I know Ganesh ji, I know Shiva ji, I know. Even I know that, for example, the beloved person of Krishna ji was Radha, and even for example, Ram. Even Ram, and Ram ji is a god also, and his beloved one is Sita. Sita Ram, they say. So I know this thing, and even I know that about Krishna more, maybe not more, but maybe more, because it was also a topic of my reel. So some of the symbols of Krishna ji are the peacock feather on his head and the flute that he has, and what else? They say And one of the things. a ribbon. Yes. That yellow thing. That went over his head, and वो बड़ा मतलब कृष्ण जी से जरा थोड़ा उसका I know रहता that है. when he was child, he was into butter a lot. Butter? Buffalo. Yeah, buffalo butter. That butter that you were saying to me हाँ, that. मक्खन. कृष्णा जी जो है Yeah. माखन खाते थे ना बचपन में. तो वो it is of cow. Not buffalo. हाँ. Cow.
Because of that, the cow is with him. The cow, No, yeah. he loves. He loves animals. Yes, I know. Animal lover. I know. Beautiful. Superb answers. So I would like to conclude this amazing podcast. And I think you guys did a phenomenal job, especially you, your courage. And especially my mention is to your dad. What he has done, I think, 1 in a million. I think it takes a lot of courage to do something like that. And his concern for you is even overwhelming. And I really have a lot of respect for him, you, and with all open hearts, we welcome you to India. So nice of you. Thank you. Thank एंड आई you. थिंक हिम जो आपने किया अपने प्यार की निशानी दी है और आपने जिस तरह से शायद जो चीज़ें नफरत हैं उनको प्यार में बदलने की कोशिश करी है Right. और जिस तरह से आप अपना मैसेज देना चाह रहे हैं एंड जो वर्किंग हार्ड वो भी बहुत मायने रखता है. सो गुरदास मान साहब की कुछ 4 लाइनें हैं जिसके साथ जी. इस एपिसोड को हम ख़त्म करेंगे. बिल्कुल. अल्लाह वालों राम वालों अपने मजहब को सियासत से बचा लो. मंदिर मस्जिद कभी फुर्सत में बना लेना. नफरत से टूटे हुए हैं वो घर तो बना लो. वाह, क्या बात है. थैंक यू सो मच गाइस. Thank you. Thank you for भाई, having बहुत us. बहुत धन्यवाद आपका. So exciting and comfortable atmosphere. Thanks for being you. our Thank you. host. Thank you.